Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will continue the concept of kidnapping and abduction under Indian Penal Code, and specifically we will discuss section 364 to section 366 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो किडनैपिंग और अबडक्शन के कंसेप्ट को ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं और आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम सेक्शन 364 से लेकर सेक्शन 366 इंडियन पिनल कोड का सारा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो इन सेक्शंस पर पूछे गए। Kidnapping and abduction, section 364 to section 366. Previous section of kidnapping we have already discussed in the previous lectures. You can watch that particular lecture from my YouTube channel. So in this particular video and lecture we will discuss section 364 to section 366. So section 364 of Indian Penal Code deals with kidnapping or abduction in order to murder. So whenever any person who has committed the offense of kidnapping or abduction for the purpose of committing the murder, in order to commit the murder of that particular person who has been kidnapped, then such person will be punished under section 364. So the concept under section 364 is whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murdered or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered. So if any person who has committed the offense of kidnapping as well as abduction, and the very aim and the purpose behind that particular kidnapping and abduction is to murder that person. In order to murder that person, if he has committed the offense of kidnapping or abduction, then such person will be punished under section 364. So अगर कोई पर्सन, कोई ऑफेंडर किसी का किडनैपिंग करता है या अबडक्शन करता है और वो किडनैपिंग और अबडक्शन करने के पीछे उसका मकसद, उसका हेतु जो है वो मर्डर करना है, यानी मर्डर करने के लिए अगर किडनैप करता है किसी पर्सन को, तो वो पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 364 में। और मे बी सो डिस्पोज्ड ऑफ एज टू बी पुट इन डेंजर ऑफ बीइंग मर्डर, या वो पर्सन को इस तरीके से किडनैप करता है कि उसको फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे डेंजर में उसको ऐसे खतरे में डाले कि जहां पर उसका मर्डर हो सकता है। अब देखिए, सच पर्सन शॉल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. So whoever commits the offense of whoever commits the offense of kidnapping in order to murder that particular person who has been kidnapped, then such person who has committed the offense under section 364 will be punished with a life imprisonment or imprisonment which may extend to 10 years and he shall also be liable to fine. तो जो कोई भी सेक्शन 364 का ऑफेंस करेगा, किडनैपिंग करेगा मर्डर करने के लिए, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद या 10 साल तक की सजा, और साथ ही साथ वो फाइन के लिए भी लायबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 364 इज दैट ए किडनैप जेड फ्रॉम इंडिया intending or knowing it to be likely that Z may be sacrificed to an idol. A has committed the offense defined in this section. तो क्या हुआ, A ने Z का किडनैपिंग किया यहां पर, और उसको पता है कि किडनैपिंग क्यों किया, क्योंकि किसी मूर्त के आगे, किसी मूर्ति के आगे, किसी आइडल के आगे उसको सेक्रीफाइस किया जाना है, उसकी बलि देना है ना। उसकी बलि किसी आइडल के सामने, किसी मूर्ति के सामने उसकी बलि देने के लिए किडनैप किया। तो जिसने भी किडनैप किया उसने इस सेक्शन में ऑफेंस किया, ऐसा ट्रीट होगा, और उसको सेक्शन 364 में उम्र कैद 10 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन के लिए वो लायबल रहेगा। अनदर एग्जांपल इज दैट ए फोर्सिबली कैरीज और इंटाइसेस बी अवे फ्रॉम हिज होम इन ऑर्डर दैट बी मे बी मर्डर। तो ए ने क्या किया कि बी को फोर्स यूज करके उसको वहां से, उसके घर से उसको लेकर गया, और उसके पीछे का इंटेंशन उसका बी का मर्डर करना था। तो यहां भी
ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो ए ने इस सेक्शन में सेक्शन 364 में ऑफेंस किया, ऐसा ट्रीट होगा। श्री मोनी नियोग एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ आसाम। संजय घोष was the general secretary of an NGO working for the welfare of people at मैजुली। तो मैजुली में संजय घोष ऐसा एक पर्सन का नाम था जो कि एक एनजीओ का जनरल सेक्रेटरी था, जो लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। एंड द मेंबर्स ऑफ अ बैंड मिलिटेंट ग्रुप्स यूनाइटेड लिबरेटेड फ्रंट ऑफ आसाम were unhappy due to the work of Sanjay Ghosh, and the Ulfa the members of Ulfa were unhappy ड्यू टू द वर्क ऑफ संजय घोष। जो संजय घोष सोशल वेलफेयर का काम कर रहा था, तो उससे जो मिलिटेंट ग्रुप था आसाम का, उल्फा यूनाइटेड लिबरेटेड फ्रंट ऑफ आसाम, ये उससे नाखुश था, उसके वर्क से वो संतुष्ट नहीं था, अनहैप्पी था। तो क्या हुआ, some of the militants had taken away संजय घोष forcefully and next day his dead body was found। तो वही मिलिटेंट ग्रुप में से उल्फा के ग्रुप के कुछ मेंबर ने क्या किया, संजय घोष को फोर्सिबली उसके घर से उठाया और दूसरे दिन संजय घोष की डेड बॉडी मिली। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, द कोर्ट हेल्ड दैट द अबडक्टर्स ऑफ संजय घोष हैज अबडक्टेड हिम विद द इंटेंशन टू मर्डर हिम। और कोर्ट ने यही डिसाइड किया यहां पर कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स के जो मेंबर थे जिन्होंने संजय घोष का अबडक्शन किया, वो अबडक्शन उसका मर्डर करने के लिए ही किया था, ऐसा ट्रीट हुआ और सेक्शन 364 में उनको पनिशमेंट हुई। The court convicted the accused and awarded them life imprisonment and a fine of ₹2000 each। तो हर एक को 2000 रुपए फाइन इंपोज किया कोर्ट ने और उनको उम्र कैद की सजा सुनाई कोर्ट ने इस केस में। अब देखिए सेक्शन 364A, किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती के लिए अगर किडनैपिंग करते हैं, रैंसम। देखिए whoever kidnaps or abducts any person or keep a person in detention after such kidnapping or abduction and threatens to cause death or hurt to such person। अब देखिए कि यहां पर क्या हुआ कि if any person has kidnapped or abducts another person and keep that person in kidnapping in detention after such a kidnapping or abduction, तो किडनैपिंग या abduction करता है और उस पर्सन को किडनैपिंग में या डिटेंशन करता है, वही किडनैपिंग के बाद अगर डिटेन करके रखता है या उसको मारने की, जान से मारने की या उसको कोई ईजा पहुंचाने की, अगर कोई इंजोर करने की अगर उसको धमकी देता है, समझ रहे हो, किडनैप करता है और किडनैप करने के बाद डिटेंशन में रखता है और डिटेंशन में रहते हुए उसको धमकी देता है जान से मारने की या इंजोर करने की, और बाय हिज कंडक्ट गिव्स राइज टू अ रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट सच पर्सन मे बी पुट टू डेथ और हर्ट और कॉज हर्ट और डेथ टू सच पर्सन इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट और एनी फॉरेन स्टेट और इंटरनेशनल intergovernmental organization or any other person to do or abstain from doing any act or to pay a ransom। तो अगर कोई पर्सन किसी को किडनैप करता है और उसको डिटेन करके रखता है, मतलब उसको अपने कब्जे में रखता है, वो चाहे किसी उसको जान से मारने की धमकी देता है, फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट से कोई उसका डिमांड है कि ऐसा करे तो मैं इसको जान से नहीं मारूंगा और अगर आपने ये नहीं किया तो मैं जान से मार दूंगा। आपने देखा होगा कि वो जो कंधार का जो ये थे आतंकवादी थे, उनको क्या हुआ, हाईजैक कर लिया था उनका प्लेन, एक प्लेन था उसको हाईजैक किया आतंकवादियों ने, और जो आतंकवादी हिरासत में थे उन्होंने डिमांड किए कि उनको छोड़ो अदरवाइज हम इनको मार देंगे। तो दिस ऑफेंस कम्स अंडर सेक्शन 364A। तो जिन्होंने वो हाईजैक किया था प्लेन को, उन्होंने सेक्शन 364A का ऑफेंस किया, ऐसा ट्रीट होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्सन को किडनैप करता हूं या अबडक्ट करता हूं और उसको मेरे डिटेंशन में, मेरे कब्जे में रखता हूं और मैं आपसे डिमांड करता हूं कि देखो ये काम आपने करे तो मैं इसे छोड़ूंगा अदरवाइज मैं इसको जान से मार दूंगा, तो मैंने ऑफेंस कौन सा किया, सेक्शन 364A का। या मैं ये करता हूं कि मेरे कब्जे में आपका लड़का है, फॉर एग्जांपल मैं आपको फोन करता हूं कि आप मुझे ये जगह पर 50 लाख रुपए पहुंचा दो तो आपका बच्चा आपको जिंदा मिलेगा, अदरवाइज मैं आपके बच्चे को मार दूंगा। आई हैव कमिटेड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 364A। तो अगर किसी गवर्नमेंट को भी अगर कोई करने के लिए मजबूर करता है या कुछ ना करने के लिए मजबूर करता है, डिमांड करता है, तो ऐसे पर्सन ने सेक्शन 364A का ऑफेंस किया, ऐसा ट्रीट होगा। देन द पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 364A शैल बी पनिशेबल विद डेथ और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो डेथ पेनाल्टी है, यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा है और साथ ही साथ फाइन के लिए भी वो लायबल है।
अब देखिए कि नेत्रपाल वर्सेस स्टेट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इन दिस केस अक्यूज्ड नेत्रपाल वाज ए मास्टर टू तनु जोहिया, अ 6-year-old बॉय। तो यहां पर नेत्रपाल नाम का एक टीचर था, मास्टर था, जो एक तनु जोहिया नाम का 6 साल का बच्चा था, उसका वो मास्टर था। समझ रहे हो? अक्यूज। हुआ ऐसा, वन डे ही हैड टेकन द बॉय अलॉन्ग विथ अदर बॉयज ऑन अ जॉय राइड इन अ रिक्शा, व्हाइल ही ड्रॉप द अदर बॉयज ही डिड नॉट ड्रॉप ऑफ तनु। तो उसने एक दिन सारे बच्चों को कहीं पर जॉय राइड के लिए ले गया रिक्शा में, लेकिन उसने सारे बच्चों को ड्रॉप किया सिवाय तनु के। जो तनु जोहिया था 6 साल के बच्चा, उसको नहीं छोड़ा उसने, बाकी सबको छोड़ दिया। अब हुआ ऐसा, तनु's फादर लॉज एफआईआर अगेंस्ट द अक्यूज्ड। तो तनु के फादर थे, उन्होंने वो मास्टर के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च किया। द पुलिस वेंट टू द अक्यूज्ड विलेज एंड फाउंड हिम देयर अलोंग विद द चाइल्ड। तो पुलिस ने जैसा ही एफआईआर लॉन्च हुई, वो उस मास्टर के गांव गए और वहां पर उन्होंने मास्टर को उस बच्चे के साथ पाया। अब हुआ ऐसा, अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड एंड अ लेटर आस्किंग of for rupees 50,000 in ransom was found in his possession। तो अक्यूज्ड को अरेस्ट किया पुलिस ने और उसके पोजीशन से, अक्यूज्ड के पोजीशन से उनको एक लेटर मिला जिसमें 50,000 रुपए की डिमांड की गई थी उस पर्सन से, उस बच्चे के फादर से। The court held that mere recovery of the letter assumed to have been written by the appellant demanding rupees 50,000 for the safety and return of the child is not enough to cover to pay the ransom by itself। अब यहां पर कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि उस मास्टर ने 50,000 रुपए की डिमांड किया था लेटर, लेकिन वो लेटर उसी के पास था, उसी के पास से रिकवर हुआ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि जब तक वो डिमांड उस पर्सन तक नहीं पहुंचती, फादर तक नहीं पहुंचती कि वो 50,000 रुपए उसने डिमांड किया, तब तक इस सेक्शन में वो कंसेप्ट कवर नहीं होगा, ऐसा कोर्ट का मानना था। क्योंकि उसने 50,000 रुपए डिमांड किया था और लेटर उसी के पास था, उसने लेटर हैंड ओवर नहीं किया था, तो इट इज नॉट इनफ टू कवर टू पे द रैंसम बाय इटसेल्फ, ऐसा कोर्ट ने यहां पर डिसाइड किया। सो डिमांड बाय अ किडनैपर इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस बिकॉज for the purpose of getting paid ransom demand must be communicated। तो demand by the kidnapper is very much essential to attract section 364A। तो डिमांड जरूरी है, डिमांड होगा तभी वो पैसे देगा। डिमांड कम्युनिकेट नहीं होती है जब तक, तब तक सेक्शन 364A में कवर नहीं होगा। नाउ सेक्शन 365, किडनैपिंग और अबडक्टिंग विथ इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन। अब देखिए, whoever kidnaps or abducts any person with intent to cause that person to be secretly and wrongfully confined। So definitely section 365 deals with whoever kidnaps or abducts any person and the very intention and aim behind such a kidnapping or abduction is to keep that person secret and to confine that person wrongfully। तो अगर कोई पर्सन किडनैपिंग या अबडक्शन करता है और इस इरादे से करता है कि उस पर्सन को सीक्रेट रखे, कि किसी को पता ना चले कि वो पर्सन को कहां पर रखा गया है, या वो पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइंड करने के इरादे से अगर किडनैपिंग या अबडक्शन करता है, तो ऐसा पर्सन को सेक्शन 365 में पनिशमेंट होगी। एंड द पनिशमेंट विल बी, सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे पर्सन को जिसने wrongfully confine करने के लिए किडनैप किया या किसी को पर्सन को सीक्रेट रखने के लिए अगर कन्फाइन किया, ऐसे पर्सन को सजा होगी 7 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन के भी प्रोविजन है। नाउ सेक्शन 366, किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमन टू कंपेल हर मैरिज। So whoever kidnaps or abducts any woman with intent that she may be compelled to marry any person against her will। So section 366 says that if the person kidnaps or abducts any female and the very aim behind the kidnapping or abduction is to compel that particular lady to marry against her will, कि अगर कोई पर्सन किडनैपिंग तो करता है किसी फीमेल का, और किडनैपिंग का रीजन ये है, किडनैपिंग का एम ये है कि उस फीमेल को जिसको उसने किडनैप किया उसको कंपेल करे मैरिज के लिए उसके इच्छा के अगेंस्ट में। वो चाहे जिसने किडनैप किया उसके खुद के साथ मैरिज के लिए वो कंपेल करे या किसी और के साथ मैरिज के लिए कंपेल करे, सेक्शन 366 अट्रैक्ट होगा।
और इन ऑर्डर दैट शी मे बी फोर्स्ड और सीड्यूस्ड टू इलिसिट इंटरकोर्स, या किडनैपिंग इस इरादे से करता है कि उसको वो फोर्स करे, उसको कंपेल करे, किस चीज के लिए? सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, इलिसिट इंटरकोर्स के लिए। समझ रहे हो? सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए उसको फोर्स करे, इस इरादे से किडनैपिंग करता है तो भी सेक्शन 366 अट्रैक्ट होगा। सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसे पर्सन को 10 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन के प्रोविजन भी है। तो किसी को जबरदस्ती मैरिज कराने के इरादे से उसके इच्छा के अगेंस्ट में अगर किडनैप किया जाता है, या उससे नाजायज संबंध इलिसिट इंटरकोर्स के लिए अगर उसको किडनैप या अबडक्ट किया जाता है किसी फीमेल को, सेक्शन 366 में आरोपी को सजा होगी 10 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन। And whoever by means of criminal intimidation as defined in this code or of abuse of authority or any other method of compulsion induces any woman to go from any place with intent that she may be or knowing that it is likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person shall also be punishable as aforesaid। तो इसमें अगर किसी वुमन को डरा धमका कर, उसको इंजोर करने की धमकी देकर अगर किसी वुमन को कंपेल किया जाता है, कि घर से भगाया जाता है या उसको कहीं ले जाया जाता है, उसको धमकी देकर, इंजोर करने की धमकी देकर, और उसके पीछे का एम क्या है कि उसको फोर्स करे इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो इस सिचुएशन में भी ऐसे पर्सन को सेक्शन 366 में ही सजा होगी, 10 साल तक की सजा, साथ ही साथ फाइन। So these are the particular provision which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you. Thank you very much.